Today, I'm especially thankful to Dr. Talwar and his missus because he is in a way related to me and all my relations, though they all believed that I was a personification of love and affection, good character, and all that goes with a saint. And though my husband always calls me an awliya, all my family people, whether they are from my mother's side or from my husband's side or from my father's side, all of them knew that I was an exceptional relation, that I had tremendous love for them, affection for them, and they were all very much attached to me. But still I found all of them had a barrier to become ardent Sahaja Yogis. Surprisingly, it happened that first time Dr. Talwar, who is a relation of mine, has broken this barrier, which gives me a lot of hope for my all other relations, who are quite a lot of them, that they will follow suit and will try to come to Sahaja Yoga. Normally, if it's a fake man who is making a big money out of public and making a big name out of it and using the reputation for the betterment of his relations, I have seen that people stick on to such an organization very easily. Always you will find all the relations gathered together, somebody's nephew, somebody's brother-in-law, somebody, gathered together along that goal. But I had another fortune that my relations did take realization, no doubt. They believed in it, but they would not come out as Sahaja Yogis, regular Sahaja Yogis, persistently following the growth of Sahaja Yoga. So I am extremely thankful to him and his wife for this gracious understanding of Sahaja Yoga, because he is a great seeker and he felt that if the solution has to come, then we should forget all these barriers and jump into that which is such a great task. I cannot do it all alone. If I could have done it, I would have done it. But I cannot. You are the channels, you are on the stage. It has to be worked out on you. So what can I do alone? And this is what he has felt, and he has come to my assistance in his grace. I am very thankful to him. Now today, as I told you, the topic on which normally I avoid to talk, because it's not a very good topic to talk, but it is better that people should be made aware of it. I didn't want to talk about it for 3 years when I started my work. Even when I went to America, I didn't want to talk about it. Though all the saints, all great incarnations have said something about it. But I wanted to avoid it because I thought I might be able to save people without talking about it. But it is not. We have to talk about the darkness which is within us and we are not aware of it. The right-sided people are easily seen, they are futuristic, they are aggressive, they aggress others. The extreme example of that was Hitler. Hitler was the one who dominated by his ego. The people put ideas into them that you are a special race chosen by God, and people accepted it. Not only accepted him, but accepted the same kind of attitude that he had, and he tried to dominate people, killed them, did all kinds of atrocious, horrible, horrendous things. Now today, we have to understand something else which is responsible for another type of aggression towards yourself, not towards others, but towards yourself. आज मैं हिंदी में भी थोड़ी सी बातचीत करूंगी, जैसे कि कल मैंने पूरे समय हिंदी में बातचीत की, लोगों ने समझ लिया। मेरी भाषा में कुछ संस्कृत शब्द ज़्यादा हैं
इसके लिए माफ़ करें, मैं उर्दू भी जानती हूँ थोड़ा बहुत। कोशिश करूँगी कि जब भी कोई ऐसा हिंदी शकील शब्द इस्तेमाल करूँ तो उसके साथ थोड़ा उर्दू का भी इस्तेमाल हो जाए, इससे लोग इस भाषा को समझ लें। हालांकि मैं कोई सी भी भाषा को मानती नहीं है जो मनुष्य समझ न सके। जो भाषा सब मनुष्य समझ सके, ज़्यादातर लोग समझ सके, उस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। भाषा के मामले में वो सार्वजनिक होनी चाहिए। किसी एक लिटरेचर के लिए कोई भाषा अगर ठीक भी होती है, पर सब समाज के लिए जो भाषा हो वही भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए। आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, ये बातचीत हो सकती तो मैं टाल देती, लेकिन नहीं हो सकता। इसकी बातचीत करनी होगी, उसके बगैर होगा नहीं। इसलिए मुझे क्षमा करें कि इसकी बातचीत मैं आपसे कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इससे परिचित हो जाएं। इसे हम आधि दैविक और आधि भौतिक इस दो नामों से जानते हैं। अब इसके लिए कोई उर्दू में शब्द नहीं है क्योंकि इस पे इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आधि दैविक वो है जिसे हम राइट साइडेड कहते हैं। जब आदमी राइट साइडेड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या जब वो धर्म के मामले में भी सोचता है कि मैं इस शक्ति को प्राप्त करूं, उस शक्ति को प्राप्त करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए जिससे मैं पृथ्वी के तल में क्या है या और गुप्त चीजें कहाँ हैं, कहाँ गुप्त धन छिपा हुआ है, इस तरह की बातें जो आदमी बहुत प्रयत्न करता है, उसके ऊपर इसका असर आ जाता है। इसे हम आधि दैविक कहते हैं। ये राइट साइड में होती है, जो कि पिंगला नाड़ी से परे जो हमारे अंदर जगह बनी हुई उस जगह में होती है। इसे सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया जो है हम सबके अंदर बसी है। जब आदमी इस तरह से बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो जो लोग अपने महत्वाकांक्षा एम्बिशंस को लेकर के मरे हुए हैं, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हो सकते हैं और आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसी इच्छाएं लेके मरे हैं कि हम मर्क्यूरी से सोना बनाए, इस तरह की विक्षिप्त जिन्होंने अपनी इच्छाएं रखी हुई हैं, ऐसे जीव जब संसार में मरते हैं और उनका एग्रेशन पूरा नहीं होता तो वो इस एरिया में हमारे रहते हैं, जिसे कि हम सुप्रा कॉन्शियस से परे उसके नजदीक ही जो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है, जिसे कि आप सामूहिक सुप्रा कॉन्शियस कह सकते हैं या जिसे आप सामूहिक भविष्य कह सकते हैं, जहां सारे भविष्य को मानने वाले लोग जो भविष्य से लड़ते रहे, जिन्होंने भविष्य के सहारे संसार जीता है, ऐसे सब लोग यहाँ स्थित रहते हैं। जितने भी कुछ ऐसे प्राणी थे, जितने भी कुछ ऐसे पक्षी थे, जितने भी कुछ इस तरह के जंगल थे या इस तरह के आप कहिए पत्ते थे, फूल थे, जो कि दूसरों पे एग्रेशन करते थे, दूसरों पे आक्रमण करते थे, ऐसे सारे के सारे इस जगह स्थित है, सारे हमारे अंदर स्थित है। ये जगह हमारे अंदर बनी। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया में जा करके आप ऐसी चीजों को जान सकते हैं, जैसे कि LSD नाम की जब चीज आप ले लें तो आप पे ये असर आ जाता है और आप उसे देख सकते हैं। नानाविध आपको रंग दिखाई देंगे, ये सब सुप्रा कॉन्शियस है। बहुत से लोगों को एकदम से कहीं क्रॉस दिखाई दे देता है, कहीं किसी को प्रकाश दिखाई दे देता है, कहीं कुछ इस तरह की चीज दिखाई देना माने आप वहां नहीं। और ऐसे लोग करते करते फिर ये भी जानते हैं कि अब कौन आने वाला है, मुझे हंच आया ये साहब आने वाले हैं। या ऐसे आदमियों को ये भी होता है कि हाँ मुझे पता है वो वहां क्या कह रहे हैं, उनका मुझे पता है। इनको मराठी में हमारे यहाँ मन कवड़े कहते हैं, शायद हिंदी में भी कोई शब्द होगा, कि जो बैठे बैठे ही बता सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। अब इसके जानने से परमात्मा को जाना कैसे जाएगा? परमात्मा का स्थान तो यहाँ पर सुपर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर हमें जाने का है। और हम राइट साइड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आगे। इस मामले में कुछ तांत्रिक होते हैं जो राइट साइडेड होते हैं। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप कौन सी नौकरी के लिए आए हैं, जो आपका फ्यूचर जो आपके दिमाग में सारा फ्यूचर बता। लेकिन दूसरी जो साइड है वो इससे भी डेंजरस है।
राइट साइड तो है क्योंकि उससे हिटलर जैसा आदमी हुआ और उसको ऐसे लोगों ने मदद की कि जो बहुत एम्बिशियस थे वो उनके मदद में आए, उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया और इनकी बुद्धि पर ऐसा जाल डाल दिया कि ये देख नहीं पाए कि ये इंसान है और हम भी इंसान हैं। इनको गैस चैम्बर में मारने से क्या हम बच सकते हैं? ये भी तो हमारा एक हिस्सा है। लेकिन वो ऐसा कुछ जाल उस वक्त फैल गया, ये जो जिसे कहना चाहिए मृत जो लोग हैं, जो मरे हुए ऐसे बड़े बड़े एम्बिशियस लोग हैं, उन सब ने उस वक्त मदद की। और ऐसे लोग ने आज भी हर जगह अपने अपने केंद्र खोले। जैसे कि बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स मर गए जिन्होंने कुछ उनकी डिस्कवरी रह गई। जैसे लंदन में एक लेट डॉक्टर लैंग की एक इंस्टीट्यूशन है, वो मर गए, स्वयं नहीं है, उनका इंस्टीट्यूशन उनके बाद बना। वजह ये बिल्कुल वो साफ बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते। अपने देश में ये है कि साफ नहीं बताते। उन्होंने कहा कि जब ये मर गए उसके बाद एक कोई सोल्जर था जो कि वियतनाम में या कहीं पर लड़ रहा था, उसके ऊपर ये छा गए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर घुस रहा हूं, तुम जाकर के मेरे लड़के से ये बात बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं। और ऐसे बहुत से लोग हैं डॉक्टर्स वगैरह जो इसमें मदद करेंगे और एक ऐसा तुम इंस्टीट्यूशन। तो ये वहां से भाग करके लंदन गए। लंदन में जाकर के उनसे बताया कि आपके पिताजी मेरे अंदर आ गए। उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं, कल मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके इस फलाने जगह में आप खो दिए तो वहां धन रखा, और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपसे जो जो गुप्त बातें की थी वो उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको बताता। जब उन्होंने ये बातें उनको बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा शुरू। वो मैं इस तरह से जानती हूँ क्योंकि एक स्त्री हमारे पास आई और वो आते साथ वो बदन उनका थर 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 कांप रहा था। मैंने कहा ये क्या आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है, दिखने में तो आप बहुत हेल्दी लगती हैं और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है? तो कहने लगे कि वैसे तो माँ एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो ये डॉक्टर लैंग का नाम आपने सुना होगा, उनके पास मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फलानी तारीख को 5 बजे इंतजार करिए, हम आपको ठीक कर। और उनको 5 बजे फिर से बदन में खूब जोर से ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी गर्मी चढ़ाई है और वो सारा बदन उनका कांपने लगा और उसके बाद उनका मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई। 1 साल तक मैं ठीक रही, 2 साल तक ठीक रही और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी नस तक ऐसी ढीली पड़ गई कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं, कोई अगर हाथ लगाए तो मैं चीखूं, कोई अगर बोले तो मैं चीखूं, ऐसी मुझे परेशानी। इस तरह से वो मेरे पास आई थी। हालांकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था, पर ऐसे फिर अनेक लोगों के मैंने नाम सुने कि जो ऑपरेशन कर देते हैं और उसका खून नहीं निकलता और ये नहीं, ये सारे भूत हैं। इन भूतों से बच के रहना चाहिए। आपको अपनी ही शक्ति में ठीक होना चाहिए, दूसरों की शक्ति में। आपकी अपनी शक्ति अपने अंदर निहित है जो आपको ठीक कर सकती है। आप जब दूसरों की शक्ति पर जाते हैं तब आप अधिदैविक शक्ति पर उतर आते हैं। अब दूसरी साइड जो है जिसको कि हम लेफ्ट साइड कहते हैं, जिसे कि ईड़ा नाड़ी संभालती है, यह हमारी भावना प्रधान, भावनामय, जिसको कि फीलिंग्स की, इमोशंस की कहिए, या आपके दिल के जज्बात जो होते हैं जिससे आप महसूस करते हैं, वो ये जो नाड़ी है ये जब बहुत ज्यादा कार्यान्वित होती है तो आपने सुना होगा कि तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इससे प्लावित होते हैं, इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन लोगों की यह बात होती है कि जो गलत बात होगी उसको ही बहुत बड़ा बना करके उसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। जैसे कि एक औरत है और शादीशुदा है और वो किसी एक आदमी से प्यार करती है, जो भी इस तरह की बातचीत है, अब वो उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती और उसके लिए वो बड़ी दुखियारी बन के घूमती है। और ऐसे आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, गजलें पढ़ी होंगी जो रोनी सबको हालत कर देते हैं और इंसान उसको पसंद भी करता है। शायद इंसान चाहता है कि दूसरे रोएं और हम हंसें या खुश हों। इस तरह की जो रोनी बातें हैं और रोनी चीजें हैं ये इसी से निकलती हैं जहां पर कि आपकी ईड़ा नाड़ी चलती। दूसरों को रुलाना, दूसरों को ये कहना कि भगवान मैं बिरहा में बैठा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे आप मिलिए, ये सब लेफ्ट साइड की भक्ति है। इसी से भक्ति का उगम होता है, लेकिन वो भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। वो कृष्ण ने जो कहा है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आपको देना हो तो आप मुझे दीजिए,
लेकिन अनन्य भक्ति करें। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जब दूसरा न रहे, जब आप उनसे एक हो जाएं तब भक्ति करिए। उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन इस शब्द को कोई जानता ही नहीं कि अनन्य क्या खेल है। जब अनन्य भक्ति होगी तभी वो असली भक्ति होगी, और जब तक ये अनन्य भक्ति नहीं होगी तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। और यही बात है कि लोग बस गाते रहते कि भगवान हम तुमसे कब मिलेंगे, और उसके लिए रोते रहेंगे, अपना सर पीटेंगे, भूखे मरेंगे, सर एक पैर पे खड़े रहेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये तो परमात्मा को दुख देने की बात है कि आप बेकारी में अपना सर पीट रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो मातम करते। मैंने देखा है एक बार मुल्तान में, इतनी भयंकर चीज है वो कि देखते ही बदन पे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे मेरे ही ऊपर कोई कोड़े मार रहा। लेकिन ये सब दिमागी जमा खर्च जो है ये ऐसा आया हुआ है कि इंसान सोचता है कि जितनी भी हम दुख उठाएं उतनी अच्छी बात है। ये सब आपकी लेफ्ट साइडेड भक्ति, ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा उसे कहते हैं जहां अंधकार, जहां आपने जाना, जहां आपने अनुभव पाया, उस जगह जो भक्ति होती है वो श्रद्धा है। और नहीं तो इसे फिर आप ये कहें कि अंधविश्वास। विश्वास भी वही होता है जहां आपने अनुभव लेकर के विश्वास किया। लेकिन बगैर अनुभव के कोई भी चीज का विश्वास कर लेना, उसके लिए शब्द है अंधविश्वास। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। एक होता है फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ। अगर ये दो चीज नहीं होती तो दो शब्द नहीं आते। और इसलिए क्योंकि मनुष्य जब इस लेफ्ट साइड में जाता है तो उसको बड़ा मजा आता है कि वो अपने को सताए। जो राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है, तो उसको समझता ही नहीं कि इसमें तकलीफ क्या है। और जो लेफ्ट साइडेड होता है वो खुद ही अपने को सताता है, और उसको शायद अच्छा लगता हो, पता नहीं क्यों वो सताते ही रहता अपने को, रोएगा और दुख मानेगा, और उसको दुख मानने में ही अच्छा लगता है। ये तामसिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कभी कभी मेरी समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये कब ठीक होगी। एक तो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ठीक है होंगे कहीं बैठे होंगे। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं वो ये कि जब तक हरेक पंडित जी के सामने सर न झुकाएं, इस सर को सिजदा करना मना है। ये सर जो है ये कोई हरेक आदमी के सामने सिजदा करने के लिए नहीं बना हुआ कि आप जाकर हर एक के सामने अपना सर रखें। यहाँ एकादश रुद्र की शक्तियां हैं। ये एकादश रुद्र जो है ये हमारे अंदर हमारे विनाश के लिए जब तैयारी करता है, तब कैंसर आदि बीमारियां एकादश रुद्र से शुरू। ये सर किसी के सामने सिजदा नहीं कर सकता। हाँ, जो सिर्फ इनकारनेशन हो उसके ही आगे आपको सिजदा करना चाहिए, और किसी के आगे आपको सिजदा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप सिजदा ही न करें तो अच्छा। ये सर सबके सामने झुकाने की जो आदत है ये बहुत गलत है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे सामने भी इस वक्त सर न झुकाएं। जब तक हम हमें जानते नहीं, जब तक आपने हमसे कुछ लिया नहीं, जब तक आपने हमसे पाया नहीं, आप मेरे सामने भी सर मत झुकाएं। ये जो सिजदा करने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है उसी से हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। और कुछ गुलामी के 300 साल हमारे सर पे जो बैठ गए उससे भी हम बहुत ही लेफ्ट साइडेड। गुलामी की वजह से हमें आदत पड़ गई है कि हम गुलामों की तरह हैं। अगर हमें अंग्रेजी भाषा ठीक से बोलनी नहीं आती तो हम सोचते हैं कि बहुत गुनाह हो गया, और हिंदी अगर हमें ठीक से बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें कोई भी शर्म नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी नहीं चाहिए। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी कभी भी ठीक से हिंदी नहीं बोलते। एक साहब बहुत हिंदी के लिए वक्तव्य दे रहे थे और हिंदी बोलते वक्त स्पष्ट को अस्पष्ट बोल रहे थे। स्पष्ट का अगर अस्पष्ट लगाए कि उल्टा ही हो जाता। इस तरह की हमारे अंदर ये जो गुलामी आ गई उससे हम लोग लेफ्ट साइडेड लोग, हर चीज में हम गुलामों जैसे चल रहे हैं। कोई हमारे अंदर खुलापन नहीं है कि हम सोच सकते हैं इससे भी परे कोई चीज। अभी कोई भी आ गए पंडित जी महाराज या कोई काशाय वस्त्र पहन करके गुरु जी आ गए तो हो गए उनके चरणों में सिजदा। भाई ये आदमी कौन है, कहां से आया? अगर पता करिए, हो सकता है जेल से छूटा हुआ कोई चोर हो या कोई दुष्ट हो,
क्या पता कहां से आया है जो काशाय वस्त्र पहन के बैठा है। काशाय वस्त्र को सर झुकाने की हमारी जो आदत है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो काशाय वस्त्र पहना है उसको हमारे घर गृहस्थी के लोगों से क्या मतलब। आप अगर संस्कृत पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने एक पूरा अध्याय लिखा कि जो आदमी सन्यासी है उसको किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं, न ही उसको किसी भी नगर में आने का अधिकार है, नगर से बाहर उसे रहना चाहिए। और हम लोग किसी भी काशाय वस्त्र वाले पे इस तरह से टूट पड़ते हैं, इधर तो हमारा घर चलाना, गृहस्थी चलाना, ये सारा कार्य, यही एक बड़ा भारी यज्ञ है कि विवाहित होकर के अपने बाल बच्चों को धर्म में रखना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और जो हम मेहनत की कमाई करती हैं वो क्या है, इन लोगों के लिए जो कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं और बदतमीजी करते हैं और उनको हम सारा अपना पैसा दे दें। मैंने आपसे पहले कहा कि सहयोग ये समाजोन्मुख है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई काशाय वस्त्र पहन के आए तो उसे हम रियलाइजेशन नहीं दे पाते, क्योंकि झूठ है, मिथ्या बात है कि आप काशाय वस्त्र पहने। अगर आप सन्यासी हैं तो आप अंदर से सन्यासी। आपने जाना है कि राजा जनक को विदेही कहा जाता था और इसीलिए सीता जी को भी वैदेही कहा जाता था। जो आदमी सन्यासी है वो अंदर से छूटा हुआ है। क्या गुरु नानक साहब ने विवाह नहीं किया था? क्या तुकाराम ने विवाह नहीं किया था? जो लोग 40 साल से ऊपर तक रह गए सबने विवाह किया, लेकिन जिनकी बहुत ही पहले मृत्यु हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया और किसी कारणवश विवाह नहीं किया हो। या बुद्ध जो थे, बुद्ध ने भी जिस वक्त अपनी पत्नी को छोड़ा तब वो ये सोचते थे, उस वक्त ये सोचते थे कि पत्नी को छोड़कर संसार त्याग करके और सन्यास लेकर के वो परमात्मा को पाएंगे। उन्होंने उस वक्त समझा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने परमात्मा को पाया तो सहज वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सहज में ही पाया। एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके रोजमर्रा के जीवन पे क्या असर आता है सहयोग का। सबसे तो बड़ी चीज है कि ये रोजमर्रा के जीवन के लिए, ये आपके हर गतिविधियों के लिए है, हर तरह के आपके काम के लिए सहयोग है। इससे आप एकदम जिसे कहते हैं डायनामिक हो जाते हैं। सहयोग ऐसे आदमियों के लिए नहीं कि जो संसार छोड़ के भागा है, अपने बीवी को छोड़ के भागा है। ये तो ऐसा है कि मियाँ बीवी में आपस का प्रेम, श्रद्धा, बच्चों में माता पिता के प्रति आदर और समझ, बड़ों के प्रति आदर, ये सब चीज स्थापित करने वाली चीज सहयोग है। जहां ये चीज स्थापित नहीं होती उसे हम सहज नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि एक आध दो ऐसे आदमी उसमें फंस जाएं जो कि परेशान करने के लिए इस तरह की काम करें कि जो सहज से विरोध है, लेकिन वो सहयोगी नहीं होते। जो सहयोगी है उनको अच्छे से विवाह करके और अच्छा घर बसाना चाहिए और ऐसे सुरम्य स्थान में रहना चाहिए जहां की लोग आए उनका आगमन हो। अपने यहां भी जो लोग जानते हैं लक्ष्मी जी के बारे में कि लक्ष्मीपति उसे कहते हैं कि जो एक स्त्री स्वरूप, मां स्वरूप जिसके पास धन है। वो धन ऐसा है कि जो कोई आता है, भूंगा भी आता है तो उसे भी इतना, उसमें कांटेदार जानवर होते भी उसे अपने घर में स्थान देता है। इस लक्ष्मीपति के स्वरूप हमारे यहाँ लोगों के घर होने चाहिए। ये सहयोग का विचार है। ये नहीं कि घर तोड़ो, डिवोर्स करो, इधर से उधर भागो और 4 हस्बैंड डिवोर्स करो और 4 औरतें डिवोर्स करो और बाकी सब लोग जाके अनाथालय में बुढ़ापा काटो। इस तरह की व्यवस्था सहयोग नहीं मानती और न होता है, क्योंकि जिस वक्त सहयोग जागृत होता है तब असली प्रेम जो है उसका असली स्वरूप सामने आता है, क्योंकि इसका जो मुख्य धागा है वो है परमात्मा का प्रेम। और क्या परमात्मा चाहेगा कि मियाँ बीवी में बिछोह हो जाए, कि वो आपस में लड़े झगड़े और बच्चों को परेशान करे या बच्चे माँ बाप को परेशान करे? ये जो इतनी रिश्तेदारी है हमारी बनाई नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई जितनी रिश्तेदारी है उसे हम लोग मानते हैं। लेकिन विवाह जो है ये सामूहिक एक घटना है, सामूहिक घटना है। उस सामूहिक घटना में मनुष्य उसे पाता है। जब सब लोगों ने कह दिया कि विवाह हो रहा है, सबके आनंद के लिए विवाह होता है,
अभी हमने आपसे बताया कि सहयोग में अभी हमने 108 लोगों की शादी की एक जंगल में ले जाकर, और बड़ी सुंदरता से सब शादियां हुई, उसमें एक पैसे की डावरी नहीं, कुछ नहीं, और इस तरह से विवाह। तो ये सोचना चाहिए कि कोई सी भी चीज में जिसमें दुख होता है, तकलीफ होती, परेशानी होती, वो सहज नहीं। ये मनुष्य अपने ऊपर ले लेता है, ये ओढ़ लेता है, उसको बना लेता है। वो चीज अपने आप ढह जानी चाहिए। अगर वो ढह जाए तो मानना चाहिए कि आप सहज हो, और होती ये चीज बनती है। लेकिन सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि हम न तो लेफ्ट में रहेंगे न राइट में रहेंगे, हम मध्य मार्ग में खड़े रहेंगे। जब लोग प्रेम की बात करते हैं तो वो ऐसा ही प्रेम समझते हैं कि मैं अपने लड़के से प्यार करता हूं। अपने देश में तो बड़ी बीमारी है इसकी, लड़का माने भगवान हो गया। लड़का हुआ तो उसके लिए चाहे अपना देश बिक जाए, हर जाने पर लड़का ही सब। लड़के के पीछे अपनी जान देना और लड़की के पीछे जान देना, लड़की के लिए डावरी देना, लड़की के लिए ये करना, चाहे अपने भूखों मरे, ये भी लेफ्ट साइडेड चीज है। ये भी बिल्कुल लेफ्ट साइडेड चीज है, और इसी वजह से अपने यहां आजकल बच्चे खराब हुए जा रहे हैं। इतना ज्यादा किसी भी चीज में आदमी को अपने को लूटना नहीं चाहिए। सोचना ये चाहिए कि हम परमात्मा के बंदे, परमात्मा ने हमें बनाया, ये बाल बच्चे भी उनके लिए। लेकिन जब सहयोग में आप विवाहित होते हैं तो आश्चर्य की बात है कि आज तक मैंने देखा नहीं कि जो सहयोग में विवाहित हुआ हो, उनके अंदर कोई त्रुटियां हो या उनके घर में कोई खराबी आई हो। उनके उदर से, ऐसी माताओं के उदर से बड़े बड़े संत साधु पैदा हो रहे। बचपन से ही वो पार बचे, बचपन से ही कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, बचपन से ही वो आपको रियलाइजेशन देना जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े जीव इस संसार में आने के लिए बैठे हुए हैं, और हमें ऐसे घरों की तलाश है जहां पर कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार से प्रभावित है, आत्म साक्षात्कार में लीन है। तभी तो ना ऐसे बच्चे पैदा होंगे, नहीं तो ऐसे लड़ाका लोगों के यहाँ कौन बच्चे पैदा होने वाले। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि वहां पर आजकल पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की माइनस हो रही होगी, जहां पर कि बच्चों को मार डाला जाता है। एक हफ्ते में 2 बच्चे जहां इंग्लैंड में मारे जाते हैं माँ बाप, तो ऐसे जगह कौन बच्चे पैदा होंगे जहां बच्चों को प्यार नहीं मिलता, बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। ऐसी जगह एक तो राक्षस ही पैदा हो सकते, और हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम इस तरह से बिगाड़ देते हैं प्यार करके और हमारा तुम्हारा कर करके कि वो बच्चे भी कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते। बड़े स्वार्थी, बड़े ही संकुचित दृष्टि के, संकीर्ण दिमाग के, और उनको सबको ऐसा लगता है कि वो सबके सब राजा है। वस्तु स्थिति ये है, असलियत ये है कि बच्चों को उस जगह रखना चाहिए जहां वो हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक ट्रस्ट है, उनको संभालने वाले। ये नहीं कि उनको आप खराब करिए या उनको आप परेशान करिए। जो लोग इस तरह से प्रेम की बातें करते हैं, आजकल प्रेम की बातें ज्यादा है और प्रेम कहीं है नहीं। लंदन में आप देखिए तो रास्ते पर भी सब लोग आपको दिखाई देंगे बदतमीजी करते हुए, मानो जैसा बड़ा प्रेम है। और पूछा भाई कहां जा रहे हैं, कि हम डिवोर्स केस करने जा रहे हैं। रास्ता डिवोर्स केस का लिया हुआ है और रास्ते में बदतमीजी करते चले जा रहे। जहां इसका प्रदर्शन ज्यादा होना शुरू हुआ, समझ लीजिए घपला है। क्योंकि अगर अंदर आदमी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस हो, उसको पूर्ण विश्वास हो, तो चाहे पत्नी कहीं भी रहे, पति कहीं भी रहे, वो पूर्ण विश्वास में आराम से रहता है कि हाँ है। और जहां वो डावाडोल मामला है, वहीं पे आप सोच लीजिए कि इसका भाव प्रदर्शन दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है कि हाँ हाँ मैं कितना अपने पति को प्रेम करती हूँ और पत्नी को प्रेम करती हूँ। और ये प्रेम के बहाने जो दुनिया भर की चीजें हम लोग कर रहे हैं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। इतना कृत्रिम और इतना उत्तरी ये चीज है कि बस 2-4 दिन शादी के बीतने दीजिए, फिर लट्ठम लट्ठी हो जाती शुरू। ऐसे प्रेम का कोई अर्थ भी होता है। और जब ऐसी औरतें जो कि रो रो के मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरा पति घर देर से आया, मेरा पति ये करती हैं, वो सब लेफ्ट साइडेड हो जाती। और आदमी भी जो अपने औरतों के लिए इस तरह से रोते बैठते हैं, वो भी लेफ्ट साइडेड होते हैं।
पर अपने आदमी और ही तरह के होते हैं, वो तो औरतों को मारने पे आमादा रहते हैं। जो औरतों की इज्जत नहीं करते वो सहयोगी नहीं हो सकते। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन औरत को भी पूजनीय होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी पूजा हो पर वो स्वयं भी पूजनीय हो, ये एक सहयोग का अट्टहास है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो आप बहकते ही चले जाते हैं। एक साहब बड़े दुखी, बहुत दुखी। मैंने कहा हुआ क्या? कहले भाई बड़ा मुझे दुख हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मुझे मेरे लड़के ने कहा कि पापा मुझे स्कूटर ले दो, मैं खरीद नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हो गया? आपको लड़की से कहना चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं नहीं खरीद सकता, उसमें इतना आपको दुख होने की क्या बात है? साहब कहने मेरा बस चले तो मेरे बच्चों को मैं सारी दुनिया दे दूं। मैंने कहा वाह वाह, क्या कहने आपने? क्या आपका बच्चा क्या है? क्या भगवान है? उसको सारी दुनिया देने के लिए आपको किसने कहा? क्या दुनिया आपके बाप की जो आप उसको सारी दुनिया दे रहे? ये सारी गलतफहमियां हिंदुस्तानियों के दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल बात है। अपने बच्चे के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए भी फिर उसमें और इम्बैलेंसेस आते हैं। जैसे कि मेरे माँ है तो उसके लिए, मेरे बाप है तो उसके लिए, और इसके लिए और उसके लिए। आप अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थ में नहीं, परमात्मा के लिए। परमार्थ में आप अपने लिए जी रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आपको ग्लानि उठानी पड़े। आप अपनी शान से रहिए। कोई होगा अपनी जगह, अपनी शान से रहना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में बैठा हूं। ठीक है, जो मेरे दरबार में आए, परमात्मा के दरबार में आए, वही मेरे रिश्तेदार। एक बार ईसा मसीह को किसी ने आके बताया कि तुम्हारे बहन और भाई बाहर आए। ईसा मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन? सवाल पूछा। अब वो वही कह सकते हैं जो कि उस स्थिति में कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन। मतलब ये कि जो मेरे साथ परमात्मा के दरबार में बैठे वही मेरे भाई, वही मेरी बहन, वही मेरे रिश्तेदार, और बाकी जो है उनकी रिश्तेदारी क्या, वो तो मतलबी लोग हैं जो रिश्तेदारी जोड़े पड़े। जब तक उनका मतलब पूरा करिए तब तक आपके हैं। आपके बच्चों को जब तक पता है कि आपके पास ठन ठन कुछ रुपया है तब तक आपके हैं, नहीं तो आपके नहीं। इस तरह से आपको प्रेम के बारे में भी पूरी तरह से समझना चाहिए। हम बड़े प्रेमी हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि माँ हम आश्रम में गए और लोगों ने हमसे प्रेम से बात की। मैंने कहा ठीक है, आपकी हालत जरा देखिए क्या है। आपको भूतों ने पकड़ा हुआ है, आपकी हालत खराब है। आप वहां पहुंचे और आपने वहां गड़बड़ बातें करनी शुरू कर दी, तो भूतों से तो प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं। उनको तो झाड़े बगैर वो ठीक नहीं होते, 2 झाड़ लगाइए तब ठीक होते। हाँ, लेकिन जो असल है उसके लिए सारा प्यार है। असल में जो उनको झाड़ता भी है वो भी प्रेम में झाड़ता है। ईसा मसीह का भी उदाहरण दे दे कि जिन्होंने उनको माफ कर दिया जबकि वो क्रूस पे टंग गए थे, इतना उन्होंने प्यार किया उन लोगों पर कि प्रभु ये जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। वही ईसा मसीह ने एक बार हाथ में हंटर लेकर के, जितने लोग उस मंदिर के पास में चीजें बेच रहे थे उनको एक हंटर लेकर के तड़ मारना शुरू। और बहुत बार मेरा भी ऐसा मन करता है जब मैं मंदिरों में देखती हूँ और मस्जिदों में देखती हूँ कि उसके बाहर लोग बाजार हाट करते बैठते हैं और वो मंदिर में ऐसी चीजें भेजते हैं जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाइए तो वहाँ हार आप देंगे, वो खरीद लीजिए, फिर आके फिर वही बिकता है। तब मन करता है कि एक हंटर लेके सबको मारा जाए खूब अच्छे से, जिससे इनकी तबीयत हरी हो जाए। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो सोचते हैं कि वो हार बेचने वाला उसके भी पैर छू लूं, फिर एक पत्थर दिखाई दिया उसके भी पैर छू लूं, फिर कहीं और कुछ वहां भी पैर छू लूं, वहां भी 2 रुपए दे दूं, वहां भी 4 रुपए दे दूं, वहां भी 5 रुपए। वो सोचता ही नहीं, उसके आगे अंधेरे में टटोल रहा है, उसको इसी में मजा आ रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं तो श्रद्धा में ही। ये श्रद्धा नहीं, ये अंधविश्वास है। ऐसे लेफ्ट साइडेड लोग जो होते हैं जो कि ईड़ा नाड़ी के उस पार चले जाते, जिनमें ये अधिक चीज हो जाती, उनका हाल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग, ये लोग हमारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो बोदियां इनके यहाँ बाजार में मिलती है, वो लगा करके, और धोती इनको पहनना नहीं आता, और वो हाथ में ढोलक लेकर के और नाचते हैं, वो सब धोतियां गिरती, वो औरतें इतनी बेवकूफ जैसी, और उनसे पूछने जाइए कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कृष्ण का नाम खराब, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वो सुनेंगे नहीं।
वो सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके दिमाग में वही बैठा है हरे रामा हरे कृष्णा कर। उसमें से 2-4 लोग सहयोग में जब भी आए तो देखा उनको कैंसर हो गया ऑफ द थ्रोट। तो कहते हैं कि थ्रोट में अगर यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है तो हमें कैसे हो गया? भाई तुम कर क्या रहे? उनके साथ तो ज्यादती कर रहे हो। क्या ऐसा कृष्ण ने कभी किया था कि आप जाकर के रास्ते में वहां पर जहां पे सब आपके ऊपर हंसे और बुरी तरह से आप ये बोलियां लगा करके ढोंगबाजी करिए? ऐसे अनेक ढोंग लोग करते हैं, और वो ढोंग के पीछे में कभी कभी सच्चाई भी ये होती कि वो आके विश्वास भी करते कि सही बात है, लेकिन कोई सी भी गलत बात को सही समझ करके और उसके पीछे लगना और अपनी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल तामसिक स्वभाव। तामसिक लोगों में ये जरूर होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, मृदु भाषण होता है, मधुर लगते हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि बेचारे दुखियारी। पर दुख काहे को मना ले? एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य जो कि बड़े पहुंचे पुरुष थे उनके पास पहुंचे और वहां उन्होंने अपना शुरू कर दिया कुछ कहना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कि काहे गिगिया बताओ, गिगियाने की क्या जरूरत है जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी। जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख मना रहे हैं? और ऐसे दुख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना, जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए, उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज है जो कि बहुत भयंकर है, इसी को भूत कहते हैं। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन 58 और प्रोटीन 52, क्योंकि उनको भूत कहने में जरा अड़चन जाती है। खुद भी भूत होंगे कोई मेरे ख्याल से, तभी उनको अड़चन जाती, नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52, प्रोटीन 58। कल ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है, माने सारे भूतकाल में, सारे पास्ट में जो बना हुआ है, उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, तभी कैंसर सेट इन होता है। वल्नरेबिलिटी कैंसर की अगर रहे तो रहती है, पर बहुत से डिजीजेस जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां से, उस एरिया में से ये जो चीजें आकर के हिट करती है। माने साफ साफ बात है, ये भूत है कि नहीं? जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारा, जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है, माने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं, तब कैंसर सेट इन होता है। तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले होगी। ये तामसिक लोगों पर पहला असर करती है। पहले तो जो आदमी बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है, उसको वल्नरेबल हो जाता है, माने उसको इंतजामात उसके पास हो जाते हैं। और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है, नहीं समझ लीजिए पॉलिटिशियन है, खास पॉलिटिशियन लोगों की खासियत कि बड़े वो दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद देखा किसी को कि कोई है आदमी पोजीशन का, सर झुका लिया, गए। ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, उसको कैंसर की बीमारी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है, ये हमारे अंदर चलता ही है, क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय जोर जोर से चलने लगेगा, हमारे दिल में धड़कन जोर से होने लगेगी, यानी हम चाहें तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो किससे होता है? वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से, और बीच में अगर सुषुम्ना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है, तो ये हिल जाती, और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से, होल से है, जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, वो टूट जाता है। तो हम लोग उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, माने ये कि आप अपने ही सवार,
अपने ही सवार है, आर्बिट्ररी जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन, ये मैलिग्नेंसी। ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब, लेकिन ये होने के लिए, ऐसा होने के लिए भी एक जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार हो। तो दो पर्सनालिटीज हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाती है। अगर इस बीमारी को आपने ले लिया तो इसका इलाज यही है कि वो जो आपके अंदर भूत बैठा है उसको पहले निकालना चाहिए। भूत नाम की चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नष्ट कर देगा, आप स्वयं उसके ऊपर सवार हो सकते। वो जब आपके अंदर असर कर जाता है तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी आती है। जितना वायरस इन्फेक्शन है ये उस वक्त की मरी हुई जितनी वनस्पति है, उन वनस्पति, ऐसी वनस्पतियां पहले होती थी जो दूसरे वनस्पतियों को खा लेती थी, पैरासाइट्स कहते हैं। इस तरह की वनस्पतियां जब मर गईं और अपने उत्क्रांति के इवोल्यूशन के प्रोसेस में से निकल गईं, ऐसी जो वनस्पतियां हैं वो जब अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जगह बनी हुई एरिया है, वहां स्थित रहती है, और अगर वो कहीं आ जाए तो वो हमें जब असर करती तो वायरस इन्फेक्शन, कोई सी भी दवा लेने से फायदा नहीं हो सकता। हालांकि दबा दब डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक सब दुनिया भर की बीमारियां देती हैं, वो इंजेक्शन देते रहते हैं, चाहे उसमें वो सिर्फ और तो कुछ डिस्टिल वाटर ही देते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि हाँ इसमें इंजेक्शन लो, इंजेक्शन। उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है, वो तो बाधा है, भूत की बाधा हो गई, एक तरह के भूत ही है। लेकिन उस वक्त इलाज क्या होना चाहिए? सहयोग। सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है, और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म। किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है इतना सिर्फ सीखना है, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन माँ आप भूत की बात क्यों करते हैं? ऐसा आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे जो बताना है, मैं आपकी माँ हूं और मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ऐसे गलत लोगों के सामने सर झुकाना, यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं, और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना। कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं, सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली। ये क्या? सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे, और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे, हर मंगलवार को आप जाएंगे। इतना ही नहीं, वहां अगर 5 मिनट की भी अगर क्यों होगी तो भी आप जाएंगे, लेकिन अगर कहे कोई सहयोग में आप 10 मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले। वो चक्कर बन जाते, वो चक्कर शुरू हो जाते। फिर वही चीज है कि आपको है कि नहीं गए, अरे भाई ये काम नहीं, ये नहीं, फिर वहां हमने तो मंदिर में नहीं गए, हमने आरती नहीं करी, हम चर्च में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में नहीं गए, ये रह गए। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर परमात्मा है, पहले उसको पालिए, फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज है और अपनी शान को आप कहां गिरा। पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे। पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए, फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले जोत जलाना, सबने कहा है कि अपने अंदर जोत जला लीजिए। मुझे एक बताइए जो पहुंचे पुरुष हो उन्होंने ये बात न कही। आज मैं वही कह रही हूं कि पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजरस है। फिर अगर आपने इन भूतों की बात मानी, वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते, ऐसा करिए वैसा करिए, झगड़े लगाइए। एक अगर भूता घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला। ये जितनी भी हमारे यहाँ खुराफातें होती हैं ये तंबाकू से भी होती है। जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से, मैंने देखा झूठ बोलता है। शिवाजी महाराज के जमाने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज नहीं थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग बड़े अच्छे से रहे, आपस में प्रेम रहा। और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कि कहीं से एक कब्जी कलूसा नाम का आदमी गया, वो तंबाकू का पहला प्लांट लेके गया था।
उसने वहां तंबाकू लगाई और लोगों ने तंबाकू खाना शुरू कर। तंबाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि उसकी पकड़ जाती, चक्र पकड़ जाता है, यहाँ कोई भूत बैठ जाती। तंबाकू ये भूत है, राक्षसीन है। इसको भगवान ने इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके यहाँ अगर कुछ ऐसे वैसी चीजें लग जाए आपके पेड़ में, तो तंबाकू के पानी से वो मर जाती। एक भूत को दूसरा भूत मारता है, इसलिए अभी तक वो जीवित है। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए। मुसलमानों के जमाने में जब मोहम्मद साहब थे तब तंबाकू थी नहीं तो वो बता जाते कि तंबाकू न खाइए, तंबाकू मत पीजिए। लेकिन जब नानक साहब आए, जो कि वही साक्षात थे, उन्होंने देखा कि सब लोग अब ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन तंबाकू लेने कोई हर्ज नहीं। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई अच्छा रहने दो, अभी तुमने नई चीज निकाली, अब तंबाकू भी मत। वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताएंगे, आपको सताने के लिए नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बचाने के लिए बताएंगे। अब जब निकल आई है बात कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तब लोगों को खोपड़ी में आती बात। कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मत पीजिए, लेकिन सहयोग के बाद आप नहीं पिएंगे। एक बार हमारे गली में आ जाइए, फिर देखते हैं आप सिगरेट कैसे पिएंगे। ये माँ का तरीका। आपकी जब जागृति हो जाएगी, आप सिगरेट पिएंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा। और अगर पीजिएगा तो खांसते खांसते हालत खराब जाएगी, दूसरे दिन आप सिगरेट सारे उठा के तो कैंसर कैसे होगा? सहयोग ऐसी चीज है कि आपके अंदर ही धर्म धारणा करता है। हम ये नहीं कहते कि आप शराब मत पीजिए, हम नहीं कहते, लेकिन सब लोग शराब छोड़ देते हैं अपने आप। सब लोग अपने आप छोड़ देते हैं, हम कहते नहीं, क्योंकि जिन्होंने कहा उनके जो शिष्य लोग वो ऐसा पीते हैं कि समझ में नहीं आता कि इन लोग से जो कहा वो शायद उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए ही इतना डबल लोग पीते। माफ करिए, मैं लंदन में रहती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के और सिखों के यहाँ बार लगे हुए, सबसे ज्यादा। अंग्रेजी सभ्यता में एक बात है कि घर के अंदर कभी कोई बार नहीं बनाता, उसके लिए पब में जाना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान या किसी भी सिख के घर जाइए तो शान से दिखाएगा, देखिए साहब मेरा कैसा पब है, उसमें सारी चीजें बनी हुई। मुझे आश्चर्य होता, जिनको मना कर गए वही चीज वो लोग करते हैं। जैसे हिंदुओं से बता गए कि सब में एक ही परमात्मा बसे हुए हैं, वही इन्होंने जातियां बनाई, और जाति बना बना करके तू ब्राह्मण तू शूद्र ये सब दुनिया भर की चीज बनाई, जो कि फिर एक तामसिक बड़ा भारी नुकसानदेह चीज। सिर्फ 3 जाति संसार में है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 14,000 वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए, वो लिख गए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यही 3 जातियां देवी की हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन 3 जातियों के सिवाय और चौथी जात कोई नहीं है। एक है जो जात से परे, जो कि हम जिसे योगी जन कहते हैं, जिसे संत साधु कहते हैं, जिनको हम परमार्थी कहते हैं, जो परमात्मा के, उनकी कोई जात नहीं। लेकिन उस पर झगड़ा करने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे कि मैंने सुना कि कोई शंकराचार्य साहब भिड़ गए कि साहब ब्राह्मणों का ये अधिकार। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण को नहीं जानती। जिसने ब्रह्म को जाना वो माना है, उसको तो मानना है ही। लेकिन जिसने नहीं जाना वो अपने ऊपर ब्राह्मण कर ये लगा ले तो वो झूठी बात, सत्य नहीं। कुछ अपने ऊपर सर्टिफिकेट लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, और गीता में हो ही नहीं सकता। ये बात गीता में लिखी ही नहीं जा सकती कि ब्राह्मणों का ये अधिकार है, क्योंकि जिसने गीता लिखी वो एक ढीमरनी का इलेजिटिमेट बच्चा है, व्यास। ये भी अच्छा सा भगवान ने इंतजाम किया कि व्यास से ही लिखाया, जिससे लोग ऐसी झूठी चीज पे न चले। वाल्मीकि कौन था? वो कोई ब्राह्मण था? वो ब्राह्मण हो गया। व्यास कौन था? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो गया। जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है।
और इस तरह की जाति पाति बना देने से हम लोग आपस में आजकल इलेक्शन भी इस पर कर रहे हैं। रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होंने शिवाजी से कहा कि मराठा ते तुका मेळवावा। मराठा का मतलब उनका था कि जिसने परमात्मा को जाना वो मराठा। मैं कहती हूँ कितने ऐसे मराठी लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है। मराठा ते तुका मेळवावा, खुद थे मराठा, और जो क्षत्रिय होते वो भी अपने को मराठा कहलाते। लेकिन एक क्षत्रिय जो है मराठी, ये कितने परमात्मा को जानते। जिनके लिए उन्होंने कहा था वो ऐसे लोग, ऐसे वीर, ऐसे शूर जो कि अपने स्वधर्म को चाहते हैं और स्वधर्म को पाते हैं, ऐसों को मिलाई। उस वक्त जो मावड़े लोग थे जिन्होंने कि बिल्कुल जिनको हम लोग कहते हैं कि कुंभी लोग जो थे, वो लोगों को उन्होंने मराठा माना। और शिवाजी खुद जिस वक्त उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो इन ब्राह्मणों ने ये बात उठाई कि इनका राज्याभिषेक कैसा होगा, ये जात के कुंभी है, और अब जो राज्य पे बैठे सब लोग हैं ये सब क्या ब्राह्मण जाति के हैं, और ब्राह्मणों को अधिकार नहीं राज्य पे बैठे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कि ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते। फिर ये कैसे चल रहा है, ये चक्कर हम लोग समझ नहीं पाते। उस वक्त शिवाजी महाराज को तो छोड़िए, महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए। महात्मा गांधी को ले जाकर नासिक में कहा गया कि तुम यहाँ प्रायश्चित करो क्योंकि तुम इंग्लैंड जाके आए, और अब इंग्लैंड से आई हुई शराब बैठ के पीते, तब कुछ नहीं प्रायश्चित होता है नासिक के पंडितों। उनको तक झुका दिया। मैं महात्मा जी के साथ थी, मैंने एक दिन ऐसी मजाक में कहा कि आपने नासिक में जाके क्यों प्रायश्चित किया। कहले भाई अगर मैं नहीं करता तो मेरे गोली से मार देते, और वैसे तो मारा ही गोली से प्रायश्चित करने के बाद। इस तरह की जाति पाति बना करके एक जात ऊंची, एक जात नीची, औरतें नीची, आदमी ऊंचे, इस तरह की जो भेदभाव करना है ये असल में अमंगल चीज। तुकाराम ने कहा कि भेद करना अमंगल अमंगल है, शुभ नहीं होता। और इसीलिए अपना देश आज इतनी निम्न स्थिति में आया कि हम लोग एक दूसरों को काटने के हजारों इंतजाम हमने करे। कोई है तो फलानी सभा बना रहा है, कोई है तो वो सभा बना रहा है। आप सब इंसान परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, उसको पाइए। आपस में भेद कर करके आपने क्या सुख पाया। अब हमारे यहाँ दूसरी एक प्रथा बड़ी जबरदस्त है कि भाई हम तो इस जाति के हैं, और हम तो जैसे हमारे कास्तों में है, या समझ लीजिए आपके कोई और जाति ब्राह्मणों में, उसी से शादी करें और कहीं क्यों उसी में शादी करेंगे। कल अगर उस लड़की को किसी ने छोड़ दिया तो तुम्हारी जात खड़ी होती है उस लड़की के लिए या आपके लिए, किस लिए वहां शादी करेंगे। कल अगर आपके साथ कुछ जाति हो गई तो कौन सी जाति आज तक खड़ी हुई है आपके साथ में, क्यों इस जाति पाति को लेकर चल रहे। ये बड़ी झूठ जात है, या आपकी जात नहीं, आपकी सिर्फ 3 जात है, और जो चौथी है उसमें जब आ जाते हैं तो इसका विचार नहीं। ये विश्व धर्म है। जब आप योगी जन हो गए तो आप विश्व धर्म में आ गए, और वही विश्व धर्म आ जाने की जरूरत है। ये विश्व धर्म जो है ये सारे तत्वों का सार, सारे धर्मों का सार। ये जो बड़े बड़े लोग हो गए, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े इनकारनेशंस हो गए, जो संत हो गए, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं, आपको पता नहीं। ईसा मसीह ने कह दिया था कि those who are not against me are with me। वो कौन है? ईसाई लोग जाकर के पूछे कि वो कौन है। ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी रिश्तेदारी उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि लोग फिर शक करने लगे। सारों की आपस में रिश्तेदारी है। अगर आप कहिए कि मोहम्मद साहब कौन थे, तो वो सीता जी के पिता जो राजा जनक थे वही थे, और वही नानक साहब, और नानक साहब की जो नानकी थी वही सीता जी थी। अगर आपको और आगे बताएं तो आप लोगों को हैरानी हो जाए। ये सारे रिश्तेदारी, और इस रिश्तेदारी को हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं, क्योंकि जो सत्य होता है तब उस वक्त आपके अंदर चैतन्य बहेगा। जिस वक्त आप पूछेंगे क्या ये बात सत्य है, तो चैतन्य आपके अंदर से बहना लगेगा, तो आप समझ लेंगे कि बात सच है। सच और झूठ को आप इसी एक दशा में जान सकते हैं जहां आपके हाथ में चैतन्य बहता है। उससे पहले सच और झूठ 2 ही तरह का होता है।
एक तो झूठ को आप सच मान लेते हैं और या तो सच और झूठ को ही नहीं समझ पाते। जो सात्विक होता है वही समझ पाता है धीरे धीरे, लेकिन जब तक आप योगी जन नहीं होते पक्की पूरी तरह से एब्सोल्यूट एकमेव कि यही सत्य है, ये वही जान सकता है जो योगी जन है। और जो योगी नहीं है वो नहीं जान सकता। वो चाहे कितना भी कहे कि यही सत्य है, वो हो सकता है कि इत्तेफाक से सत्य निकल आए और सत्य भी निकल सकता है, लेकिन जो सत्य है वो सिर्फ आप चैतन्य से ही जान सकते। अब किसी ने कहा कि यहाँ स्वयंभू है, यहाँ स्वयंभू श्री गणेश, कैसे जाना स्वयंभू है? किसी ने कह दिया तो मान लिया। किसने कहा? किसी न किसी बड़े संतों ने कहा होगा कि ये स्वयं, किसी फकीर ने कहा ये स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब ये है कि जो इस पृथ्वी तत्व से बाहर निकला है। बहुत से लोगों ने इसकी बात इसलिए नहीं करी, निराकार ही की बात करी, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी एक डेटी की, देवता की बात करते हैं तो लगे उसी को पूजने। जैसे कि फूलों की आप अगर बात करें तो लोग लगते हैं कि फूलों के पीछे। तो लोगों ने सोचा कि फूलों की बात न करें, शहद की बात करें, मधु की बात करें कि मधु को लेना है। जिन्होंने मधु की बात करी वो भी बात रह गई, जिन्होंने फूलों की बात करी वही फूलों की बात रह गई। तो फिर क्या किया जाए? आपको मधुकर होना चाहिए। आप जब तक मधुकर नहीं होंगे आप उस मधु को पी ही नहीं सकते। आपको बदलना होगा, आपका परिवर्तन होना है, आपका दूसरा जन्म होना है। जब तक आप वो नहीं होते तब तक आप उस मधु को नहीं पा सकते। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए मधु को आप नहीं पा सकते। आप सिर्फ वही गा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस मधु को आप पा नहीं रहे। उस मधु को पाने के लिए आपको वो होना चाहिए जिसे मधुकर कहते हैं। अपने देश में तमस इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं। और इस तमस से निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि आप पहले सब चीज भूल कर, जो कुछ आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो भी कुछ आपके अंदर भरा गया है, जो संस्कार भरे हैं, उसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए और पहले अपनी जोत जला करके फिर देखें कि इसमें के सुसंस्कार कौन से हैं और कुसंस्कार कौन से। इसी का फायदा इस दुष्ट फ्राइड ने उठाया कि लोगों ने सबको संस्कारित कर दिया, क्योंकि वहां तो एक और भी गंदा काम लोगों ने किया कि कैथोलिसिज्म शुरू कर दिया। उसमें नन्स बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, जबरदस्ती का राम राम, शादी नहीं करना, ऐसे अजीब से कपड़े पहन के घूमना। उसके प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन में वहां पर ये फ्राइड साहब आसीन हो गए। उन्होंने कहा ये सब कंडीशनिंग है, इसको छोड़ो। तो ये कंडीशनिंग को छोड़ो तो आप फिर क्या रह जाते? आप अहंकार रह जाएंगे। अगर आप में ये चीज नहीं रहेगी तो दूसरी चीज है अहंकार। या तो आप अहंकारी अभिमानी हो जाएंगे और या तो आप कंडीशन बिल्कुल झुके हुए आदमी की जो कह रहे हो, चलो बैल, जैसे खाने में बैल लगाया जाता है उसकी 2 झापड़े रहती, उसी तरह से आप गोल 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 घूम रहे हैं, उसमें से निकाला कैसे? ये झापड़ और ये बैल का घाना जो है सभी छूट जाता है जिस वक्त आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपके स्व का तंत्र जब जागृत हो जाएगा तो तभी आप, यही सब संत साधु ने कहा है, हमेशा कहा है, और ये भी कहा कि ये कार्य कलयुग में ही होने वाला है। इसीलिए घोर कलयुग आया है और इसीलिए आज इतने लोग परमात्मा को खोज में हैं। पहले कोई इतने लोग मिलते थे? सब लोग तो संतों को मारने पे आमार, सबको छला, सताया, परेशान किया और कुछ नहीं किया। जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको माना नहीं। जब वो मर गए तब हाँ जरूर उनके लिए ये बनाओ, वो बनाओ, सब दुनिया भर की चीज बना करके और धर्म स्थापना करी। आप जानते हैं ज्ञानेश्वर जी को कितना परेशान किया। जिन्होंने परेशान किया उन्होंने आज उनके मंदिर बनाए। और हमने एक बार उनसे कहा कि हमें आपके हॉल में आप प्रोग्राम के लिए भी जगह ले। नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ तो हम सिर्फ हमारे वो ऐसे नाचते हैं, वो लेकर के ले जी। उनका दिंड्या, यहाँ दिंड्या करिए तो आप होगा। मैंने कहा कि जो ये बैठे हैं जिनका यहाँ पुतला है, ये क्या दिंड्या करते थे?
तो कहने वो तो पहुंचे हुए थे और हम लोग तो दिन जाई करते, हम यहाँ ध्यान नहीं करते। ये हमारी दशा आज आ गई है कि धर्म की विकृति इस तरह हम लोगों ने मान ली है कि लोगों को ये शंका हो रही कि क्या ये धर्म है कि अधर्म है। फिर अगर धर्म है तो धर्म का कोई सिलसिला ही दिखाई नहीं देता, आपस में कोई प्रेम नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उल्लास नहीं, कुछ नहीं। ये है क्या चीज? ये भारत भूमि जो कि महान योग भूमि है, उस देश में ये हाहाकार, ये आफत, क्योंकि हमने सही रास्ता नहीं, गलत चीज को सही समझ करके हम लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की। इसको एक बार इस गुलामी को तोड़ देना, ये असली स्वतंत्रता है। इस गुलामी को छोड़ दीजिए और देखिए कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है। ये सारे हमारे जो भूत मरे हुए हैं, उन्होंने हमें जकड़ा। एक साहब दिल्ली में ही एक साहब हमारे पास आए। जैसे हमारे पास आए तो वो सर के बल खड़े हो गए, उन्होंने उल्टे ये घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया, सारे हथियों के उसने प्रयोग शुरू कर दिया। मैंने कहा इसकी अतड़ियाँ निकल आएंगी, इसको बंद करो। वो कहले मैं बंद नहीं कर सकता माँ, मेरे सामने सब यही कर रहे हैं। मैंने कहा यह है क्या तमाशा। बाद में उसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो पता हुआ कि महाशय किसी लड़ाई में गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त, पाकिस्तान से लौटते वक्त किसी हिंदुओं के स्मशान भूमि में चले, वहां पर किसी हठयोगी ने इसको पकड़ लिया। ऐसी उसकी हालत हो गई कि वो बेचारा, उसके मुंह से खून निकलता था, आफत होती थी, पर ये अपना हठयोगी करते रहता था। इस हठयोग के वजह से उसके प्राण ही निकल जाते। अंत में सिर्फ उसकी आत्मा ने उसे बचाया और आज वो एक बड़ा सुंदर सहयोगी। कोई सी भी अतिशयता मनुष्य करता है तो सोच लेना चाहिए कि कोई भूत सवार है हमारे। आप लोग बहुत से सरकारी नौकर हैं, मैं नहीं कहती कि सरकारी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भूत जैसे आप लगे रहते हैं ऐसी जरूरत नहीं। इतना करके भी कौन सा कल्याण किया आपने? ना बीबी को देखना, ना बच्चों को देखना, ना कोई मतलब। इतनी कमाई करके जब बुढ़े हो जाते हैं, जब हालत खराब हो जाती है, तो फिर घर में आप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते, रिटायरमेंट। और कौन सा आपने कल्याण देश का किया हुआ है? या आप गिरधारी जी बन करके एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना और रात दिन पागल जैसे दौड़े रहते, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। संतुलन में रहना। जो आदमी ऐसा चलता है वो बिल्कुल राइट साइडेड हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है। अब इंग्लैंड अमेरिका में इतना काम नहीं होता क्योंकि वहाँ आलस्य आने लगा लोगों में। बहुत काम कर चुके, आप सब ब्रिजेस बन गए, ये बन गए, वो बन गए, अब क्या बनाए? तो वहाँ एक दूसरी बीमारी शुरू हो गई, दौड़ो। जो दौड़ना शुरू करें तो 1 घंटा वो उनका दौड़ना ही शुरू रहता। सब पागल जैसे, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, सब दौड़ रहे। शुरू में तो मुझे लगा कि कोई भूकंप आया कि क्या हो गया, दौड़ क्यों रहे सब? तो कहने लगे कि नहीं, दौड़ने से अच्छा रहता। इन्हें भागना, एक्चुअली जिसको कहते हैं भागना, अपने जिंदगी से भाग रहे हैं, घर में मत बैठो। वो घर में बैठी नहीं। आप ही जैसे वो लोग एक जमाने में काम करते होंगे, उनके बाप दादे करते हुए उनके खोपड़ी पे बैठ गए। वो जो मरे थे इनके खोपड़ी पे बैठे, तो अब काम तो कुछ है नहीं, तो अब ये करेंगे। जब उनके खोपड़ी पे भूत सवार हो गए तो अब करेंगे। तो अब यह है कि घर में नहीं बैठ सकते। सैटरडे संडे नहीं हुआ कि उठाया उन्होंने अपनी गाड़ी और सब लोग बैठे गाड़ी में और चले कहीं बाहर। कभी 2 मिनट आपस में बातचीत नहीं होगी, कुछ प्रेम से मुलाकात नहीं होगी, कुछ जानना नहीं होगा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या आफत है, क्या सुख दुख की कोई बातचीत नहीं। बस उठाई उन्होंने, मोटर चल दी। इसे पलायनवाद, एस्केपिज्म कहना चाहिए। उसकी वजह है कि उनके सर पे, खोपड़ी पे भूत सवार हैं जो मर गए, जिन्होंने बड़े बड़े ब्रिज बनाए, ये बनाया, और बना के मिला क्या? अंत में हिप्पी तो हो गए ना। इन्होंने बहुत कुछ इतनी डेवलपमेंट कर ली है, उनका हाल क्या है वो आकर आप देखिए अंदर से। बाहर से तो बहुत अच्छे लगते, रोज तो तीसरी बीवी लेकर के आते, घर में कोई शांति नहीं, कोई धर्म नाम की चीज नहीं, किसी के पास न माँ न बहन न कोई उसकी तमीज। इनसे क्या सीखने का, इनसे क्या जानने का? इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? गधे बन गए, पूरे पक्के गधे हैं, ऐसा यहाँ से वहां तक।
कोई अमेरिकन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसकी आंख ऐसी नहीं होगी। 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। उनको ध्यान क्या करा, मैंने कहा उनको गोंद चिपकाओ, ये तो बैठ नहीं सकते। इनसे कुछ सीखने का नहीं। आप फॉरेन क्या करते हो? इन बेकार लोगों से सीख करके आप भी इन्हीं के गली में जाएंगे और जहां ये लोग पड़े हुए हैं डिस्ट्रक्शन में, वहीं आपका भी अंत होगा। मैं बता रही, एटम बॉम्ब बना दिए और अब आप खाते क्या? तो सब प्लास्टिक खाते। अमेरिका में उन्होंने आइसक्रीम दिया तो मैंने कहा कि जरा कुछ अजीब सा लग रहा है, वाइब्रेशन में आइसक्रीम कले तो बड़े लोग पसंद करते। एक साहब ने बताया, साहब इसमें तो क्ले मिलाई जाती है। मैंने कहा हाँ, अब क्ले ही खाओ, इसी लायक। हाइब्रिड खाना खाते हैं, हाइब्रिड जैसे हो गए। हाइब्रिड का आप दूध पीजिए, आपका दिमाग कल खराब ना हो तो जो कहीं। हाइब्रिड गाय आपको मालूम है कैसी होती है? हाइब्रिड गाय को ये नहीं पता होता कि ये मेरा बच्चा है कि दूसरे का है। अपने यहाँ अगर गाय का बच्चा हो जाए और वो अगर मर जाए तो गाय दूध नहीं, उसका दूध बंद हो जाता है। उनको तो होश ही नहीं कि बच्चा कौन है। अगर आप इनकी जो मुर्गियां हैं उनको पाल के देख लीजिए, कुछ स्वभाव उनका देखिए कि अपने यहाँ अगर कोई मुर्गी हो और उसके छोटे छोटे चिक्स हो तो जरा से कोई ऊपर से चील आ जाए तो फट से अपने बच्चों को अपने पास ले लेती है। इसको परवाह नहीं, ले जाए जितनों को ले जाना, अच्छा है, मेरे झंझट। वही इनके बच्चों के लिए कि भाई लड़कियों को कहते कि तुमने अभी तक डेट नहीं किया, कोई लड़का ढूंढा नहीं, कब तक ये मुसीबत हमारे सर पे बनी रहेगी। वही हाल अपने लड़कों के लिए कि लड़के 18 साल के हुए चले गए, बड़ी खुशी की बात। आपने ऐसा ही अपना संसार बनाना हो तो इन लोगों के पीछे जाइए। अब वो तो आपके पीछे आ रहे हैं और आप उनके पीछे जा रहे हैं। इनकी औरतों का दिमाग कितने खराब है आपको पता है? एकदम खराब दिमाग है। अपनी औरतों को उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए। बेवकूफ है, बिल्कुल महा बेवकूफ औरतें। और इनके दिल में, हृदय में जरा सा भी प्यार नहीं, बस पैसा पैसा पैसा। और इतने कंजूस लोग हैं कि आपको एक गिलास पानी देने में भी उनकी जान निकलती। आपको अगर वही क्वालिटी पानी है जो ये लोग हैं तो जाइए उनके पीछे। इनमें कौन सा गुण है ये मुझे बताइए आप, जिसको आप कहते हैं वायलेंस इनमें है। और यहां से जो वहां हिंदुस्तानी गए वो उससे भी बदतर हो गए। यही कहते हैं कि अगर गोवा से आम ला के दिल्ली में लगाओ तो वो लग नहीं सकता, वही हालत है। यहां से उखड़े हुए जितने बाहर गए, इतने रद्दी लोग हैं, सिर्फ पैसे के पीछे में। यहाँ तक साफ साफ कहते हैं, वहां के गुजराती मिले, वो कहने भाई डॉलर तो मेरा भगवान है, डॉलर तो मेरा सब कुछ। डॉलर भी नहीं बोलना। दूसरे एक देवी जी मिली, कहने मेरा मुंडा डाउनटाउन गया था जी, और फिर क्या हुआ, वहां से इतना डॉलर कमाता है कि बस इतना होशियार लड़का है। बस मैंने कहा बहुत होशियार। किसी की वैल्यू सिर्फ ये कि आप कितना रुपया कमाते हैं और कितने ज्यादा आप जोड़ते हैं। ये हमारे वहां जाकर हिंदुस्तानियों ने हमारी देश की शान बढ़ाई। और उनसे आप लोग क्या सीख रहे हैं सिवाय वायलेंस के? ये अमेरिकन को कुछ आता है? उठे बैठे हाथ में बंदूक लेके इसको ठोक दो, उसको ठोक दो, जैसे कोई इन्होंने ही सब संसार बनाया हो। इनसे सीखने का कुछ भी नहीं है। और न ही इनकी आप लोग बात सुनिए। इन लोगों ने आकर क्या हमारे औरतों को खराब किया। अपने औरतों का भी दिमाग इसी से खराब होकर के अब इतने डिवोर्सेस आपके दिल्ली में ही हो रहे हैं। पहले हमारे जमाने में कोई सोचता भी नहीं था डिवोर्स की बात, तो क्या हम लोग कोई बुरे थे? हमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी हमारे दिमाग में। ये सब चीजें बाहर से आकर के हम लोगों ने ऐसी जीत ली है जैसे कि वो बड़े सुखी जीव है। हाँ भाई, उन्होंने कोई ऐसा सुख पाया हो तो जरूर करे, लेकिन नहीं है। महादुखी लोग हैं, उनसे दुखी कोई नहीं। आप क्यों उनके साथ उनके आफत में जा रहे हैं? इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के कहती कि अपनी संस्कृति पे जमिए। अपनी संस्कृति में आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज है और आत्मा को पाना सबसे बड़ी चीज। उससे अलावा अपने चित्त का निरोध बताया गया है कि चित्त को रोको। यानी कि सबके ऊपर अपनी आंखें चल रही हैं। रास्ते से चलेंगे तो एक एक चीज देखते चलेंगे। अगर एक चीज नहीं दिखाई दी तो गर्दन मोड़ के तोड़ देंगे, गर्दन पर देखते रहेंगे। यह हमारे लोगों का हाल। हर एक औरत को देखना, हर एक आदमी को देखना, बच्चों को नहीं। नतमस्तक
ये हमारे देश की संस्कृति की लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी का सर नहीं देखा था, पाँव ही। उस संस्कृति में पले हुए आज हमारी आंखों को क्या हो गया, हमारी शक्लों को क्या हो गया, न वो रौनक रही न वो बातें रही। जब तक हमारे अंदर हमारी संस्कृति की पूरी तरह से बैठक नहीं आएगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने उखाड़ दिया था, तो उखाड़ दिया। हम लोग भी रहे उस जमाने में जब अंग्रेज थे, उस वक्त किसी ने असर नहीं डाला। जब हमें स्वतंत्रता मिली तभी हम बेछूट हो गए, उससे पहले हम लोग बहुत कायदे थे। उस वक्त जो लोग हो गए सो हो गए। अब ऐसे लोग तो दिखाई भी नहीं देते और सोचना भी नहीं चाहिए, पर कम से कम अपनी संस्कृति पे जमने की कोशिश करें। अपनी संस्कृति जो है हर एक चीज का अर्थ है, इस चूड़ी का अर्थ है, इस मंगलसूत्र का अर्थ है, इस बिंदी का अर्थ है, हर चीज का अर्थ है। और इस हर अर्थ का इतना बड़ा अनुदान है, इतनी बड़ी गिफ्ट है, इतनी ब्लेसिंग्स है, इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। हर चीज का मतलब आपको समझना चाहिए कि ये क्यों बना गए, जो हमारे बुजुर्ग बना गए हैं वो किस लिए बना गए। लेकिन गंदी चीजें हमने बहुत ले ली, ये तो खास चीज है। जैसे जाति है, ये जाति तो कुछ बहुत साल पहले की चीज नहीं है। ये जब से जाति बन गई, जाति लेके बैठे, उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं साहब, जाति पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा धोबी जो था बिल्कुल बेकार, वो आके मुझसे कहने लगा कि आपको मुझे इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मेरा दिमाग खराब है, तुमको मैं वोट दूंगी, तुम्हारे अलावा जो खड़े हैं वो तो बहुत बड़े आदमी, कल देख लेना मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कल सब धोबी जो है मुझे वोट दे रहे। तो मैंने कहा यहाँ सब धोबी रहते हैं? कल धोबी तो नहीं रहते हैं, पर सब धोबी जिनके यहाँ कपड़े धोते हैं उन्होंने कहा कि हम अपने मालिकों से आप ही को वोट दिलवाएं, और जनाब वो जीत गए। ये तो हमारी हालत है, ये हमारी हालत है दिमाग। कौन जीतेगा पता नहीं, आज धोबी जीत गया, कल धोबी का गधा भी जीत सकता है। और हम लोग बड़े अपने को डेमोक्रेटिक और फलाना ठिकाना कहते, 5 रुपए में तो हम बिक जाते हैं। ये तो हमारी स्थिति है और हम अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं। जो 5 रुपए में बिकता है, ऐसे वोट का भी क्या महत्व और ऐसे जीते हुए लोगों का भी क्या महत्व। जो लोग 5-5 रुपए में अपने वोट बेचते हैं, उनसे इलेक्टेड जो लोग आज खड़े हुए हैं, उनको मैं मानती ही नहीं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो हमारी क्या भलाई कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किए हो तो 20 लाख कमाए, 5 लाख खर्चे तो 10 लाख कमाए। ये सीधा हिसाब है और यही हम कर रहे हैं और करते रहे। सहयोग में आने के बाद आप देख लेंगे कि कोई भी पैसे से नहीं आपको खरीद, कोई नहीं खरीद। ऐसी शानदार चीज आपको बनना है। जब ऐसी शान आपके अंदर जागेगी तब देखना कि सही लोग, योगी जन इस संसार में राज्य करें। ये परमात्मा का साम्राज्य यहाँ पर बनाना है। पहले हिंदुस्तान में बनेगा तभी दूसरी जगह बन सकता है। इसीलिए आपके सामने मैं सर फूल रही हूँ कि यहाँ पर पहले बनाना होगा, बाहर नहीं मैं बना सकती, क्योंकि वहां तो गणपति से ग नहीं मालूम उनको, वहां मैं कैसे बना पाऊँ। आप लोग थोड़ा डावाडोल हो गए, कृपया फिर से स्थिर हो जाइए, मामला बन जाएगा। इस देश को अगर बदलना है तो पहले अपने को बदलना है, और वो बदलने की पूर्ण विधि सहयोग में है। सबको उससे लाभ होने वाला है। आज मैंने तामसिक इस पर कहा है, कल बहुत सुंदर बात कहूंगी, क्योंकि सहस्त्रार और आत्मा इसका स्वरूप क्या है, जहाँ हमें जाना है, जो हमें पाना है, जो हमारा अपना साम्राज्य है, जहाँ हम विराजने वाले हैं, वो चीज आपको मैं कल बताऊंगी। आज मैं देर से आई इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल टाइम से शुरू न करें। ये बहुत गलत बात है, ध्यान धारणा के वक्त टाइम नहीं चलता है। थोड़ी देर आके यहाँ ध्यान में बैठना, थोड़ी देर जब ध्यानस्थ हो जाए उसके बाद लेक्चर शुरू हो, वो अच्छा रहता है। लेकिन मैंने देखा आई तो बाहर शोरी चल रहा था, सब आपस में बात कर रहे थे। ये कोई सिनेमा हॉल में हम नहीं आए, हम तो मंदिर में आए हुए हैं। थोड़ा शांतिपूर्वक आकर के थोड़ी देर ध्यान में बैठना और उसके बाद फिर भाषण होना चाहिए।
एकदम से टाइम से कोई ये मिलिट्री है कि चलो टाइम से अभी आपको हम कर दें। टाइम कोई चीज ही नहीं होती परमात्मा के साम्राज्य। घड़ी कोई चीज ही नहीं होती। चीज होती है कि आनंद। जब आनंद में विभोर होगा तो टाइम रुक जाता है, वहां टाइम कहाँ जाता है। लेकिन पहले आप लोग कल आए तो मैं ये देखूं कि सब लोग शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक मौन में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर इस तरह की स्थिति आ जाने के बाद काम अच्छा बनता है। मेरी इतनी आप लोग मदद करेंगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आज फिर से हम थोड़ा सा सहयोग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग घर पे जाकर के इसके बारे में वाद विवाद न करते हुए शांतिपूर्वक इसका आनंद लें। कल फिर आपको मैं जो विशेष विषय है उसके बारे में बताऊं। कल आखिरी दिन है और कल आखिरी चक्र जो सहस्त्रार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और आशा है कि उसके बाद आप सहयोग में पूरी तरह से जम करके इस सामूहिक चेतना में जागरूक सब अपने भेदभाव भूल करके, अपनी कंडीशनिंग भूल करके पूरी तरह से आप अपने साम्राज्य को स्थापित करें। सरल, बहुत सरल है और आप सब तैयार हैं। कल बहुत से लोग पार भी हो गए, लेकिन घर जाके फिर वाद विवाद हुआ, बातचीत हुई, उससे फिर वाइब्रेशन टूट गए, कुंडलिनी फिर वापस चली गई। शुरुआत में कुंडलिनी जो ब्रह्म नाड़ी है अपने अंदर, जो सबसे सूक्ष्मतम नाड़ी है, उससे उठती। और इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में बहुत एहतियात रखना चाहिए, बहुत केयर करनी चाहिए कि जिससे ये हमारी जो उठी हुई छोटी सी सूक्ष्म एक, समझ लीजिए कि एक बाल इतनी एनर्जी है जो उठी है और वो अनेक ऐसे मिल करके जैसे कि एक रस्सी बन जाती, इस तरह से कुंडलिनी हमारे अंदर है। उसमें से बिल्कुल सूक्ष्म सी ऊपर आकर के ब्रह्मरंध्र को भेजती है और जो उसके तंतु हैं वो भी उठने चाहिए। लेकिन आप घर जाते ही आपने और इधर उधर की बातें शुरू कर दी तो वो फिर से नीचे चली गई, वाइब्रेशन फिर खत्म हो गई। इस चीज को पहले हमको उसको पाना चाहिए, पाने के बाद उसको संजोना चाहिए। जैसे एक अंकुरित छोटा सा अगर कोई प्लांट हो तो उसके अंकुर को बहुत ही जतन से रखना पड़ता है, बहुत जतन से और अत्यंत प्रेम से और अपने प्रति श्रद्धा से अपने आत्म साक्षात्कार का भी विचार रखना चाहिए कि ये कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई और इसे हम कैसे खो दें। इसे महान चीज कोई नहीं, यही पाना ही लक्ष्य है जीवन। जब ये बात है तो उसको इस तरह से एकदम जैसे कि हो एक, अब हमारे लेक्चर में आ गए, सिनेमा चले गए, दोनों चीज एक नहीं समझनी चाहिए। तो घर जाकर के इस पर वाद विवाद ऊहापोह न करते हुए मनन दृष्टि से आप यहाँ पर अपना चित्त रखे और आराम से सो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं देखती हूँ कल बहुत लोग पार होते फिर से वाइब्रेशन घट गए, लेकिन ऐसे भी बहुत मैंने देखे, एक बार पार हो गए तो हो गए, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे बहुत से लोग, खासकर देहातों में ऐसे लोग होते हैं कि बस विभोर, और आपको आश्चर्य होगा कि उन्हें इतनी जल्दी प्रगति हो जाती है। एक साल मैं बैलगाड़ी में जा रही थी, वो मेरी बैलगाड़ी हाँक रहे थे, क्योंकि देहात में तो आप मोटर वोटर से जा नहीं सकते कभी कभी। तो मैं उनसे बातें करने लगी तो मुझे लगा कि साक्षात कबीर खड़ा। अरे मैंने कहा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, सर्वसाधारण मनुष्य इसी बात कैसे करा। बोले माँ मैं तो क्या बात कर रहा हूँ, तो मेरी आत्मा ही कह रही सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आया, देखिए इतना सर्वसाधारण। और क्या ये लोग सब तो यूनिवर्सिटी में गए थे, किसी कॉलेज में गए थे? अच्छा हुआ नहीं गए बाबा, एक आफत हो जाती। ऐसे ही आप सब उस अगम्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके ही अंदर सब कुछ है, आपका बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप जानते हैं, बहुत कुछ अंतर्निहित है, छुपा हुआ है, वो सब पाने का है। वो शक्ति प्राप्त होती आप कुछ और ही हो जाएंगे। इसलिए इसकी इज्जत करें, इसकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अब इसमें आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड जो है ये आपकी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड आपकी क्रिया शक्ति।